Hello everyone, my name is Siddhartha Sinha and you are all welcome to Siddharth Studio. Siddharth Studio is a channel which I have created where I will be presenting all my artworks, my ideas related to art. Here art, what does it mean and what exactly I mean by telling the word art. I will be discussing it in this video itself. As you can see, the title of the video is What is Art? Art is a very interesting subject. Now, if you ask me to define art, I should say that it is the basic form of human communication. The medium through which we communicate, like one might communicate their ideas or thought by expressing through voice or through gesture, that is through body language, or else by writing, or else by drawing, or else by making sculpture. There can be any way, there can be any medium through which you can express your ideas, your thoughts, your belief, your experience, anything. So every form of presentation can be regarded as art. But art can also be categorized. If I express it through drawing, through image, through photography, etc., it would be coming under visual arts. Okay? If I would express my ideas through writing, then it would be literary arts. Whereas if I express my idea through gesture, through dance, through drama, through speech, it can be regarded as a performing arts, because we perform and we express our ideas. Here basically what I am going to teach or what I am going to discuss with all of you is related to visual arts or fine arts. See, visual arts, as the term suggests, it is the art form which is presented, which is expressed through visuals. Means by observing you will be able to understand what the person is trying to say. The person who creates such kind of artwork or such kind of expression is known as an artist in general. When we talk about art, we actually mean fine art or visual art. Actually, visual art has two other broad forms. One is fine art and another is applied art. Okay, fine art is that form of artwork which do not have any functional job. It is not a functional object. Okay, but it will be aesthetically beautiful. Means it has an aesthetic sense. Aesthetic means something which gives you visual pleasure. Like for example, if I display a very beautiful painting on my drawing room, then any person who would be visiting my house and they will sit in the drawing room, they would be able to see that beautiful painting and they will be pleased. That is the reason most of the people buy beautiful scenery or the painting of a horse and they keep it in their drawing room, so that the viewer, whoever comes to their house, they can be pleased with their decoration. Okay, within the drawing room itself. So if I draw, if I make a sculpture, that sculpture will not have any functional thing. It will not be functional. You will not be able to use the sculpture anywhere. But the thing is that you will be able to keep the sculpture. You can decorate it in front of your house or on your drawing room, so that any people who would see it, who would observe it, they will like it. Okay, so anything which we draw, which we do to please the people, to please the viewer, but does not have any functional value, it would be only visually pleasing. That type of art form, that type of visual arts
is known as fine art, whereas applied art is the form of art where the object can be used, but so as to attract the buyer, in order to attract the viewer, that design is made. For example, let me give you an example. I have this bottle of Set Wet body spray. As you can see, this bottle has a design. Okay, I have another bottle. It is a bottle of fixative to fix the shadings and crayons or pastels. Now, if I definitely these two are different. They both have a different activities, different works. They cannot be placed under the same category. Yes, under the same category in the sense, under spray you can keep it, but if you check the functioning will be different. Because this is used as a body spray, whereas this is used as a fixative to fix the pastel or charcoal works. Now, forget about its function, forget about everything. If I present these two bottles in front of you, some of you might select this, some of you might select this. Some of you would select this because of its design, some of you select because of its design, or else some of you would select this because of its color. Some of you may not select it because of its color, because it's white in color, does not look attractive. If it is displayed in any showroom, definitely you would be attracted towards this rather than. Why is it so? This is a scientific reason that which we have seen in the movie PK also, that yellow color is it can catch the attention of the viewer very easily. Okay, whereas white color may not do the same work. So the thing is that this design which I am talking about, to look it visually pleasing, someone have gave this type of structure to it. Otherwise this cap has no value. This is the main work. We can just spray it. Okay, this is no function, but still it has been made in order to attract the buyers. Okay, so any form of artwork, any form of art where there is a functional value, you can use the object, but to look the object attractive, some kind of design or some kind of decoration is done. So that form of artwork is known as an applied arts. So I hope it's very clear what is the difference between fine arts and applied arts. There is another question which is basically asked by many people, that why artists make art? And this is not that intelligent question actually, because it all depends upon the artist. Whether the artist want to earn money. If you want to earn money, what you could do, you can go for commission works. You would get commission. You would be given. Nowadays, what exactly happens is the customer would provide you some photograph. Looking at the photograph, you can draw on a paper, whether it's landscape or portrait, whatever it may be. And after drawing it, after making that work on a paper, you can sell it. So maybe because of that, or else if you can make any random painting, may not be this commission. It is only because you want to make it. So you can make a very beautiful scenery or a landscape, or a time of a sunset or sunrise, or a midday time near the seashore, in a hill state. You can definitely present anything. You can present mountain, you can present plains, you can present Deccan Plateau, you can present Western, Eastern Ghat, you can do anything. You can draw anything, you can present anything. So if you are intended to sell it, you can go with any exhibition, you can go to art galleries, you can sell it personally. There are many online channels as well available. Or else someone might draw as a hobby. Maybe it is a hobby to that person. Nowadays, if you see, during the lockdown period, many of the people have tried mandala art. So where mandala art is a kind of a radial balance. It's in a circle.
Okay, mandala means a circle. In a circle, they make some design, very beautiful and direct decorative design. Those can be decorated in the drawing room as well, or it can be used as a rangoli also. In some cases, and not all the case, but generally on decorative purposes, and it gives a very aesthetic sense. It is visually very pleasing if it is made very. If the symmetry is maintained, it looks very beautiful. So that can be one reason. Another reason can be like if you want to glorify your artwork, okay, like you can just make it because you want to make it. You don't want to sell it. You don't want any money from that, but you want it. You want to make. As you can see, that I am making a portrait of Sai Baba. I'm not doing it in the form of commission. No one has commissioned me for that. I am doing it for myself. I'm doing it for my own work. Okay. So that I can keep it with me. So that can be an idea. If you like history and you have read some historical note or historical facts, what you can do is you can definitely draw some scene out of it. Maybe related to Second World War, maybe related to Indian national movement. It can be anything. So there can be any reason. Okay, whatever may be the reason, there is no genuine reason for why art is made. Art can be made for all the reasons which I have discussed till now. There is another question: how art helps in decision making and problem solving, and it's a very interesting question. We might feel like art ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है. हम कुछ बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे, उस चित्र को डिस्प्ले करेंगे, दिखने में अच्छा लगेगा, बस. नो, इसका जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है. इट्स प्रोसेस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज व्हेन यू मेक अ पोर्ट्रेट और यू मेक एन लैंडस्केप, what exactly you do is you are studying the nature, the external beauty of the nature. So you study the effect of light and shade. Art is nothing but the study of light and shade. अलग अलग ऑब्जेक्ट में किस तरह से लाइट गिरेगा, किस तरह से शेड होगा, शैडो होगा. शेड, लाइट, शेड, शैडो, इस तीन चीज को अच्छे से अगर हम स्टडी करेंगे तो वही एक आर्ट फॉर्म होता है, वही आर्ट की स्टडी होती है. तो अलग अलग तरह से अगर हम स्टडी करते हैं, टेक्निक को हम सीखते हैं एक एक करके. व्हेन वी लर्न इट, व्हेन वी नो हाउ टू ड्रॉ, व्हेन वी नो द प्रोसेस, इट इज लाइक it will give you a different type of interest within you. It will generate an interest within you. जैसे डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, आपने कोई आइडिया सोचा, ठीक है, आप कुछ बनाएंगे. इसके बाद सबसे पहले आएगा कि आप कहाँ पे बनाएंगे. क्या आप उसे एक A4 साइज जेरोक्स पेपर में बनाएंगे, या आप इसे कैनवस में बनाएंगे, या इसे आप वॉल में बनाएंगे. ठीक है. इसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि कहाँ पे आप बनाने वाले हैं, इसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कौन से मीडियम से बनाएंगे. अगर आप जेरोक्स पेपर में एक्राइलिक का काम करने जाएंगे तो जेरोक्स पेपर इतना पतला होता है कि वो फट सकता है, वो खराब हो सकता है. सो उसमें एक्राइलिक यूज करना बेवकूफी होगी. तो उसमें मैं क्या यूज कर सकता हूँ, क्रेयॉन्स यूज कर सकता हूँ. आई माइट डू यूज क्रेयॉन्स देयर. अगर मैं कैनवस यूज कर रहा हूं तो क्रेयॉन्स यूज करना बेवकूफी होगी. ऑब्वियसली कैनवस बनाई है एक्रेलिक और ऑयल के लिए, तो ऑब्वियसली वहां पे मैं एक्रेलिक या ऑयल ही यूज करूंगा. अगर वॉल पेंट में कर रहा हूं तो ऑब्वियसली वॉल में जो पेंट यूज होता है, ठीक है, उस डिस्टेम्पर हो या ऑयल पेंट होता है वॉल में यूज करने के लिए, वो पेंट मैं यूज कर सकता हूँ. तो इट डिपेंड्स. अभी मैं उस पर डिसाइड करूंगा. एक बार मेरा जगह डिसाइड हो गया, इसके बाद मैंने मीडियम डिसाइड कर लिया, इसके बाद मुझे डिसाइड करना होगा कौन सा कलर मैं यूज करूंगा. ठीक है. या मैं डिसाइड करूंगा कि उसमें मैं कौन सा टेक्निक यूज करूंगा. ठीक है. तो बहुत सारी चीजें हमें डिसाइड करना होता है. एट द एंड ऑफ द डे हमें वो पर्टिकुलर जो फिनिश्ड वर्क है हमें देखने को मिलता है. फिनिश्ड वर्क भी हमें ऐसे ही नहीं मिलता, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई एनाटॉमी बना रहे हैं, पोर्ट्रेट बना रहे हैं, कहीं पे एक जगह आ गया जहां पे आपको लाइट एंड शेड समझ में नहीं आ रहा, वो एक प्रॉब्लम है.
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले आपको उस पोर्ट्रेट का या जो भी आप बना रहे हैं उसका ग्रे स्केल में आपको स्टडी करना होगा कि इसका ब्लैक एंड व्हाइट में वैल्यू क्या आएगा। उस हिसाब से अभी ब्लैक एंड व्हाइट में आपने एक बार निकाल लिया, इसके बाद कलर में आपको उससे इसमें कैसे आप मतलब लाइट एंड शेड उसमें डालेंगे वो आपको पता चल जाएगा। तो वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आर्ट आपको सोचने पर भी मजबूर करता है, ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया बना लिया, इट्स नॉट लाइक दैट। ऑब्वियसली इट इज अ अलाइनमेंट बिटवीन योर आई, ब्रेन एंड योर हैंड, क्योंकि आप कोई भी चीज देखते हैं, देखकर आपका दिमाग उस चीज को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद उसी चीज को आपका ब्रेन कमांड करता है देखकर कि वो चीज कैसा है, अकॉर्डिंगली आप उसे ट्रेस करते हैं। अगर आप ग्राफ बना लेंगे आपका काम इजी हो जाता है, ठीक है। वेरेज अगर और ग्राफ बना के कोई फोटो आपको मैंने दे दिया, उस फोटो से आप कुछ बना रहे हैं, तो वो कोई भी लेमैन कर सकता है, मैं ये मानता हूँ। उसके लिए आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है, कोई भी लेमैन कर सकता है। फोटो में अगर आप एक कोई भी फोटो खींचेंगे, उसको आप फ्रेम वाइज ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। ग्राफ बना के उसी ग्राफ का जो मेजरमेंट है आपके पेज के अनुसार प्रोपोर्शन मिला के अगर आप वही ग्राफ आपके पेपर में डाल देंगे, इट बिकम्स वेरी इजी। तो मैं उस तरह का मेथड मैं फॉलो नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता वो मेथड। मुझे ट्रेडिशनल मेथड अच्छा लगता है जो लियोनार्डो दा विंची अपने जमाने में यूज करते थे। उन जमाने में या वो सब आर्टिस्ट जो उनका काम अगर आप देखेंगे खुद ब खुद आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस जमाने में कोई फोटोग्राफ नहीं हुआ करते थे, वो लाइव से ड्रॉ करते थे। तो अभी अगर आपके सामने कोई चीज है उसको आपको देखकर बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? डेफिनेटली उस पर्टिकुलर चीज को कैसे मेजर करना होता है वो हमें जानना होगा। तो ये सारी चीजें मैं अपने वीडियोस में एक एक करके लाऊंगा। कैसे हम डिस्टेंट में ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसे हम ट्रेस करेंगे, स्टिल लाइफ करके दिखाऊंगा, पोर्ट्रेट बना के दिखाऊंगा, कॉमिक बना के दिखाऊंगा, एनाटॉमी भी बना के दिखाऊंगा। अलग अलग काम है, अलग अलग तरह का काम है, अलग अलग टॉपिक्स है। डेफिनेटली मीडियम, अलग अलग मीडियम यूज करके मैं आपको शो करूंगा। ये चैनल आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस जो भी मैं डालने वाला हूँ वो आपको नोटिफाई करेगी। इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। अगर आप आर्ट में इंटरेस्टेड है डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो फाइन आर्ट होता है ना, मैं कोशिश करूंगा ताकि फाइन आर्ट हर एक लोग इसको एक्सेस कर सके। कुछ हद तक ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा साधन है आपका जो एक्सप्रेशन है वो जाया करने का, व्यक्त करने का, ठीक है। वो कैसे आप करेंगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। बीइंग अ लेमैन आप भी ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। देखिएगा आपका जो स्ट्रेस है दिमाग में, आपके दिमाग में जो टेंशन है, द टेंशन विच यू हैव इन योर माइंड, इट विल बी रिमूव्ड थ्रू आर्ट। आर्ट हैज द पावर टू डू इट, ठीक है। तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इसके अलावा हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, अगर कोई भी कमीशन का काम देता है और ज्यादा अमाउंट हम मांगते हैं तो हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि इतना दाम क्यों, वाई सो कॉस्ट, वाई इज इट कॉस्टली, वाई एन आर्ट वर्क इज कॉस्टली। वो क्यों कॉस्टली है मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। इससे पहले मैं ये एक्चुअली पोर्ट्रेट जो बना रहा हूँ ये स्टिपलिंग मेथड में यूज कर रहा हूँ। स्टिपलिंग में क्या होता है, आपको डॉट्स यूज करना होता है, डॉट अप्लाई करके हम करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे किया है इस चीज को, कैसे मैंने साईं बाबा के इस पोर्ट्रेट को बनाया है। तो यहाँ पे मैंने जो साईं बाबा का ये पोर्ट्रेट बनाया है, अगर आप देखेंगे तो इनके जो चेहरे हैं और इनका जो गला का जो एरिया है, मैंने इसको स्टिपलिंग के थ्रू बनाया है। स्टिपलिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डॉट अप्लाई करके पोर्ट्रेट बनाते हैं। और इसका बैकग्राउंड अगर आप चेक कर रहे हैं, अगर आप इसका बैकग्राउंड देखेंगे, ये पोर्ट्रेट का अगर बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे व्हाइट डॉट्स है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको ब्लैक पेंट करके इसके बाद मैंने व्हाइट डॉट डाला है, मैंने सिर्फ ये राइटोमीटर पेन यूज किया है। ओके, इट्स अ बेसिक पेन जो आप नॉर्मल लिखने के लिए यूज करते हैं, इसी पेन को यूज किया है, ब्लैक राइटोमीटर। और इससे मैंने इसको स्क्रिबल किया है, ठीक है। स्क्रिबलिंग जिसमें हम पेन को
ऐसे ही किसी भी दिशा में हम उसको चला सकते हैं, इसका कोई निर्दिष्ट वे नहीं होता। हैचिंग होता तो मैं एक पर्टिकुलर वे में करता। लाइक अगर मुझे हैचिंग करना है तो मैं इधर डायगोनल हैचिंग करना है तो मैं इस तरह से डायगोनली इसको लाइन वाइज इसको बनाऊंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा करके दिखा देता हूँ, जैसे ठीक है, इस तरह का ये एक हैचिंग हो गया। क्रॉस हैचिंग हुआ तो इसको मैं ऐसे क्रॉस करके बना सकता हूँ इस तरह, ठीक है। स्क्रिबल जो होता है, स्क्रिबलिंग जो होता है वो इस तरह करके बनाया जाता है, ठीक है। जैसे तैसे हम अगर बनाना चाहे उस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये स्क्रिबलिंग टेक्निक यूज करके मैंने ये डॉट क्रिएट किया है यहाँ पे बैकग्राउंड में, और आपको थोड़ा मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से मैंने बनाया है, और बताना चाहूंगा ये जो मैं पोर्ट्रेट का काम कर रहा हूँ साईं बाबा का, आई एम डूइंग इट सिंस 12 जुलाई से मैंने ये स्टार्ट किया था, ठीक है, फ्रॉम 12 जुलाई। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने डेट भी लिख के रखा था, यहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है 12 तारीख, 12 जुलाई को मैंने स्टार्ट किया था और ये अभी भी चल रहा है। तो आर्टिस्ट क्यों, आर्ट का जो दाम होता है या आर्ट का कोई भी कॉस्ट इतना ज्यादा क्यों होता है, इसका उत्तर शायद लगभग आपको मिल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। मैं कोई टाइम लैप्स कुछ नहीं करने वाला, ये थोड़ा सा एरिया बचा हुआ था पोर्शन, ताकि मैं आपको दिखा सकूं किस तरह से मैं अप्लाई करता हूं इसमें। आप देखिए यहाँ और यहाँ पे वैल्यू का थोड़ा फर्क है, ये प्लेन व्हाइट है, ये थोड़ा सा शेडेड आपको नजर आएगा। ये एरिया ऑब्वियसली थोड़ा इससे थोड़ा डार्क है, ये एरिया इससे थोड़ा डार्क है। तो कैसे किया मैंने, ये प्लेन व्हाइट, ये चार्ट पेपर का व्हाइट है, ये जो मैंने किया था इसमें पहले ही मैंने थ्रू आउट द नेक, पूरा नेक एरिया मैंने ऑलरेडी डॉट दे के रखा था, ठीक है। तो डिफरेंस ये होता है कि कोई भी अगर आप डॉट देंगे, वट एवर डॉट्स यू अप्लाई, उसमें मतलब स्पेसिंग होता है, ठीक है, वो स्पेस आपको थोड़ा देखना होता है। अभी मुझे अगर इसे डार्क करना है तो मैं क्या करूंगा, जो डॉट का जो स्पेस है उसको मैं कम कर दूंगा, ठीक है। जैसे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले ये डार्क नहीं था, मैंने इसको डार्क कर दिया। तो सिमिलरली मैं अभी यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ, देखिए बहुत हल्का हल्का मैं लगा रहा हूँ। आई एम जस्ट टचिंग द सरफेस। आई एम ट्राइंग टू कीप द पेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस so that only the dots are applied and no line is placed accidentally over it. If it happens, then my entire work and my entire hard work will be gone in vain actually. Okay. इसको बेहतर करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ऐसे मैं पकड़ लेता हूँ, ऐसे पकड़ने से चीज़ थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए डॉट्स डालने में। बहुत ही हल्के हाथों से हमें डॉट अप्लाई करना होता है।
शायद आपको थोड़ा अच्छे से दिखे, इसके लिए मैंने इसे थोड़ा सा बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एरिया थोड़ा सा कवर हो गया। तो इसी तरह से मैं पूरे एरिया को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है लाइट, ये अभी भी लाइट है, इसको मुझे थोड़ा डार्क करना होगा। डार्क करने का मतलब बहुत सिंपल है, जो डॉट्स मैंने बनाए थे उसके बीच में अभी मैं डॉट्स अप्लाई कर रहा हूँ। हाँ, डॉट का इंटेंसिटी भी आपको देखना होगा, ज्यादा गहरा डॉट ना बनना चाहिए, नहीं तो इसमें मुझे ज्यादा ही डार्क टोन अप्लाई करना पड़े, क्योंकि डार्क टोन ज्यादा अप्लाई हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे इसे करना होता है, नहीं तो इधर ये डॉट्स ठीक तरह से नहीं गिरेंगे, या गिर भी जाए तो ज्यादा गहरा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, ये तो अभी थोड़ा ऊपर का लेवल का है, लेकिन जो बच्चे नया सीखना चाहते हैं, आर्ट में वो इंटरेस्टेड है, उन्हें आप सिखा सकते हैं, ये वीडियो भी दिखा सकते हैं। आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लाऊंगा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वीडियो ऑन अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बच्चे भी उसे समझ पाएंगे, एंड फ्रॉम द वेरी एलिमेंट्री लेवल मतलब आप समझ पाएंगे। और ये जो वीडियो है, इस ड्राइंग के अलावा मैंने अभी तक जो भी बताया है, वट एवर आई हैव शेयर्ड, वट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव शेयर्ड, these are all related to fine arts, and this is very important. Like I have discussed today about what is art. Okay, we need to know what is art. हम जो बात कर रहे हैं वो भी एक आर्ट है, दिस इज ऑल्सो एन आर्ट। हम जो गाना गाते हैं वो भी एक आर्ट है, राइट? सो बच्चे को पहले ये सिखाइए कि आर्ट क्या चीज है। हमें ये लगता है आर्ट मतलब ही फाइन आर्ट है, नहीं। आर्ट का मतलब होता है, एक्चुअल जो मीनिंग होता है इस शब्द का, एक्चुअल अर्थ ये होता है कि बेसिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। इंसान जो
एक्सप्रेस करता है, कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बेसिक फॉर्म है आर्ट, ठीक है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, फिर से बता देता हूं, आपके लिए भी रिपीटेशन हो जाएगा। जैसे आपका होता है विजुअल आर्ट, लिटरेरी आर्ट और आपका होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स, है ना। परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि जो आर्ट फॉर्म परफॉर्मेंस के थ्रू हम दिखाते हैं। लिटरेरी आर्ट जो लिटरेचर के साथ रिलेटेड है। लिटरेचर के साथ रिलेट होने का मतलब क्या है? लिटरेचर के साथ रिलेट होने का मतलब ये है कि लिखकर अगर हम इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। और सिमिलरली ड्राइंग का अगर बात करेंगे तो ड्राइंग का क्या होगा? वो होगा विजुअल आर्ट्स। क्यों? क्योंकि विजुअली हम किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझाना जरूरी है बच्चे को। सिंपली आर्ट स्कूल में भेजना और आर्ट सिखाना ये नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चों से मैंने पूछा था कि आप आर्ट क्यों कर रहे हैं। सबसे अजीब सा जवाब मुझे तब मिला जब एक बच्चे ने बताया, मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि बड़ा होके जब साइंस का प्रोजेक्ट देंगे या प्रैक्टिकल कराएंगे तो वो बनाने में मेरी मदद होगी। मैंने पूछा, ऐसा भाई तुमको किसने बोला? तो बोलते कि पापा ने बताया, मम्मी ने बताया, ऐसे कुछ बोला था। तो पेरेंट की सोच यहां तक लिमिटेड है कि आर्ट अगर कर रहे हैं तो बच्चे इसीलिए कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का प्रैक्टिकल किताब में वो खुद ड्रॉ कर सके। नहीं, आइडिया खराब नहीं है, ये आइडिया वैसे अच्छा है, लेकिन ये तो आइडिया बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल कॉपी में खुद बच्चा आर्ट कर सके, बना सके, वो बहुत ही बेहतरीन काम होगा। क्योंकि कोई भी चीज सीखने के लिए, अभी अगर आप जियोग्राफी सीख रहे हैं तो जियोग्राफी अगर आप मैप बनाना आपको नहीं आता खुद से, इंडिया का मैप आप नहीं बना सकते या अलग देशों का आप मैप नहीं बना सकते, अलग राज्यों का आप मैप नहीं बना सकते, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो आर्ट किसी न किसी तरह से आपको एक वे देता है जिससे आप सीख सके कि ड्राइंग कैसे करना होता है। बायोलॉजी का भी अगर कोई डायग्राम है वो आप बना रहे हैं, या फिजिक्स का कोई डायग्राम आप बना रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी आप कोई डायग्राम बना रहे हैं, तो टेक्निकल तो आर्ट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। या फिर डिजाइन आप करते हैं तो डिजाइनिंग का काम, इंटीरियर डिजाइन हो या फिर प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो, कोई किसी भी तरह का डिजाइनिंग का काम हो, आपको ड्राइंग करना होगा। आजकल तो डिजिटल वर्क्स या डिजिटल पेंटिंग भी आ गया है, लेकिन डिजिटल पेंटिंग करने से पहले ऑब्वियसली आपको बेसिक नॉलेज होना पड़ेगा आर्ट का। पेन ऑन पेपर का रिलेशन आपको समझना होगा, तभी आपका ये जो प्रोसेस होगा वो बहुत मजेदार होगा। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तो कोई भी लर्निंग हो उसे लिमिट मत रखिए कि इसी वजह से मुझे सीखना है। सीखिए बिकॉज यू विल बी गेटिंग सम इंटरेस्ट आउट ऑफ इट। इंटरेस्ट मीन्स यू विल बी एबल टू नो द टेक्निक। उस चीज का बनाने में कितना टेक्निक, किस तरह का टेक्निक उसे यूज करना होता है, किस तरह का मीडियम आप यूज करेंगे, यू विल बी, इट्स एन ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग प्रोसेस का आप हिस्सा बन जाएंगे तो वो सब्जेक्ट सीखने में आपको मजा आएगा। मे बी इट इज म्यूजिक, मे बी इट इज प्लेइंग गिटार, मे बी इट इज प्लेइंग ड्रम्स, मे बी डूइंग ड्रामा। आपको ड्रामा करके भी अच्छा लगेगा अगर आप ड्रामा का भी इम्प्रोवाइजेशन आप कर सके, आप समझ सके कि किस तरह से इसको यूज करना है। तो आर्ट में भी ऐसा होता है, अगर आप पेंटिंग करते हैं, ऐसे ही पेंटिंग करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेंटिंग, तो आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हर एक चीज को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, ठीक है, टेक्निकल चीज को समझ के अगर आप बनाते हैं। अभी इस वीडियो में मैंने टेक्निक की बात तो की नहीं है, आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो शायद उसमें आपको अच्छी तरह से आप समझ पाए। आज का वीडियो बेसिकली यही था कि आर्ट क्या चीज है, विजुअल आर्ट, फाइन आर्ट और अप्लाइड आर्ट्स में क्या डिफरेंस है, आर्ट का वैल्यू क्यों होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर आर्टिस्ट कोई भी काम कर रहा है उसको वो समय देना होता है। अगर आप पेपर का कॉस्ट देखेंगे, मटेरियल कॉस्ट देखेंगे, यहाँ पे इसमें मैंने क्या किया, ये टेप
20 रुपीज का टेप है, 20 रुपीज का पेन है और ये पेपर है 6 रुपीज का, तो ओवरऑल कैलकुलेट कीजिए 46 रुपीज आ गया। तो 46 रुपीज में अगर आप मुझे 200 रुपीज देंगे और आपको लगेगा अरे भाई ये तो बहुत मजे में रहेगा, अभी 200 रुपये मिल जाएगा तो इसको प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये काम करने में मुझे अभी तक 2 महीने लगे, अब कितने और समय लगेगा मुझे पता नहीं, कंप्लीट काम नहीं है। कंप्लीट काम होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कंप्लीट ये कैसे दिखता है। तो आर्ट का जो एंटायर ओवरऑल प्रोसेस है, आप कभी भी ये मत पूछिए कि इतना वैल्यू क्यों है, ये गलत है। ये एक आर्टिस्ट को पीड़ा पहुंचाती है, ठीक है। एक आर्टिस्ट के हिसाब से दुख होता है जब कोई इस तरह का सवाल पूछता है। एक आर्टिस्ट अगर किसी भी आर्टवर्क का दाम रख रहा है तो वो उसके समय और उसमें वो जो एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करता है उसका एक कॉस्ट आपसे मांगता है। तो कोई भी कमीशन वर्क आप देते हैं या फिर किसी भी तरह का पेंटिंग आप जब खरीदते हैं ना, तो यू विल बी ऑब्वियसली ऑब्जर्विंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ कलर, इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस इन द पेंटिंग, you will be observing a unity in the painting, but actually if you see that painting would be the soul of the artist। एक आर्टिस्ट की आत्मा आप खरीद रहे हैं, ठीक है। you are buying that energy, you are buying that artwork in the form of his energy, and it will give some positivity within your mind if you buy some kind of work। Mind it, this work is for me, it's not for sale। and moreover अगर आप आर्ट सीखते हैं, आप टी शर्ट पेंटिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। रुकिए, टी शर्ट मैंने बनाया हुआ है टी शर्ट पे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये एक पेंटिंग है जो मैंने खुद बनाया है। इट्स अ रेफरेंस विच आई हैव टेकन फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट से मैंने रेफरेंस लेके बनाया है, अपने टी शर्ट पे बनाया है। सो इन दिस वे यू कैन डू सच वर्क्स। तो टेक्निक सीख जाएंगे तो जैसे मैंने बताया, सीखने का मजा ही कुछ और है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पूरे शुरुआत से एंड तक वीडियो देखेंगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज इन द वीडियो। प्लीज वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, दैट्स व्हाट आई कैन टेल। एंड डू शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज इन द अपकमिंग वीडियोज आई विल बी कवरिंग all the interesting parts of fine arts. I will discuss about the technical part of fine art. I will draw and I will show you how you can draw and use these techniques, okay. And there will be a lot of fun. Thank you very much.